Assalamu alaikum everybody. This is Dr. Shahid Khokar, and today we will talk about 25th lecture for the subject of operations and supply chain management. This lecture pertains to the chapter 5 of your textbook, and the name of this chapter is Managing Process Constraints. So let's start today's lecture. In this lecture, first of all, you should have a clear idea that what is the constraint. And before understanding the constraint, I am hopeful that you are clear about the process analysis and process strategy. So if you talk about the constraint, so look at your slides, and first we will read the definition of what does it mean by the constraint. Any factor that limits the performance of a system and restricts its output. In simple words, you can say that कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सिस्टम को सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है उसको कम करे और उस वजह से आपकी जो आउटपुट है वो भी कम हो, तो उस फैक्टर को या उस चीज़ को हम लोग जो है कंस्ट्रेंट का नाम देंगे। यहाँ पे सिस्टम से मुराद बेसिकली आपका जो बिज़नेस है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना है, उसको हम लोग यहाँ पे सिस्टम का नाम दे रहे हैं। और आउटपुट मीन्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स and services for the customers. If you are clear about the constraint, then you should also have an idea about the capacity. And capacity is the maximum rate of output of a process or the system. So you can say, if you are talking about the capacity of a system, it means that ज़्यादा से ज़्यादा वो सिस्टम जो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, उस रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग जो है कैपेसिटी का नाम देंगे। सो फर्स्ट यू शुड बी क्लियर अबाउट द कंस्ट्रेंट, देन यू शुड बी क्लियर अबाउट द कैपेसिटी, and the third interrelated concept is called the bottleneck. And you can read from your slides what does it mean by the bottleneck. A capacity constraint resource, CCR, whose available capacity limits the organization's ability to meet the product volume, product mix or demand fluctuations required by the marketplace. सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि बॉटलनेक जो है अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, यानी कि एक ऐसा रिसोर्स जो कि आपकी कैपेसिटी को कम कर रहा है, whose available capacity limits the organization's ability, और उस कैपेसिटी कम होने की वजह से आपका जो बिज़नेस है उसकी जो सलाहियत है प्रोडक्ट वॉल्यूम्स को मीट करने की, मुख्तलिफ़ तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की और चेंजिंग डिमांड को मीट करने की जो सलाहियत है वो बेसिकली उससे मुतासर होती है। तो इसको हम लोग जो है एक्चुअली बॉटलनेक का नाम देंगे। मूविंग ऑन, we will talk about the theory of constraints. Here
you can read the concept of theory of constraint. As you can see in your slides, a systematic management approach that focuses on actively managing those constraints that impede a firm's progress towards its goal of maximizing profit and effectively using its resources. So the theory of constraints जो है वो हमें ये बताती है कि आप सिस्टमेटिकली मैनेज करेंगे उन कंस्ट्रेंट्स को जिनकी वजह से आपकी फर्म्स की जो प्रोग्रेस है वो उसके अंदर रुकावट आ रही है और फर्म्स के जो गोल्स हैं विच इज़ द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और इफ़ेक्टिवली यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, उस गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है. तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट हम थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हुए अपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इस तरीके से मैनेज करेंगे कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो और बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें. मूविंग ऑन, here he is talking about why theory of constraint is important. In this slide he is talking about the three concepts. First one is called the operational measures, which is the first column from the left side. Then he is talking about the theory of constraint view, and then he is talking about relationship to the financial measures. So in this slide he will explain that how operational measures are related with the financial measures. So we will study all of them one by one. First of all, he is talking about you should be clear what is the inventory, and here he is talking about inventory. उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे from the perspective of theory of constraints, all the money invested in a system in purchasing things that intends to sell. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बाद में बेच देंगे उसको हम लोग इन्वेंट्री का नाम देंगे. और वो कहता ये है कि इन्वेंट्री जो है अगर उसके अंदर डिक्रीज़ आए, अ डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री लीड्स टू एन इंक्रीज़ इन द नेट प्रॉफिट, ROI एंड द कैश फ्लोज. जैसे ही इन्वेंट्रीज के अंदर डिक्रीज़ आती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ जाता है और आपके कैश फ्लोज जो हैं उसके अंदर भी जो है वो बेसिकली डिक्रीज़ आती है. तो हेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपके जो कैश फ्लोज हैं वो बढ़ जाते हैं, ROI भी बढ़ जाता है और नेट प्रॉफिट जो है वो भी बेसिकली बढ़ जाता है जब आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज़ करती है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द थ्रूपुट. थ्रूपुट को हम लोग जो है सिंपल वर्ड्स के अंदर आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है. और इसमें वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं द रेट एट विच अ सिस्टम जनरेट्स मनी थ्रू द सेल्स, यानी कि आपका जो बिज़नेस है जिस रफ्तार के साथ उससे पैसा जनरेट होता है सेल्स करने के बाद, उसको हम लोग जो है थ्रूपुट का नाम देते हैं. और एन इंक्रीज इन थ्रूपुट लीड्स टू द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट. और जैसे जैसे आपका थ्रूपुट या आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ता है, ROI भी बढ़ता है और कैश फ्लोज भी जो है वो बढ़ते हैं. सिमिलरली ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल द मनी अ सिस्टम स्पेंड्स टू टर्न इन्वेंट्री इनटू द थ्रूपुट, यानी कि इन्वेंट्री को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या थ्रूपुट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो भी अखराजात एक कंपनी करती है उसको हम लोग जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नाम देंगे. और जैसे जैसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कमी आएगी तो आपके प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज़ आएगी, ROI के अंदर इंक्रीज़ आएगी और कैश फ्लोज जो है वो भी इंक्रीज़ करेंगे. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टॉकिंग अबाउट द यूटिलाइजेशन, द डिग्री टू विच इक्विपमेंट स्पेस और द वर्क फोर्स इज करेंटली बीइंग यूज्ड. इट इज़ measured एज द रेशियो ऑफ एवरेज आउटपुट रेट टू मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज. इन सिंपल वर्ड्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एक रिसोर्स की जितनी कैपेसिटी है उसमें से आप कितना जो है परसेंट यूज़ कर रहे हैं, और आमतौर पे हम लोग इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल आप 60% यूज़ कर रहे हैं या 70% यूज़ कर रहे हैं. एन इंक्रीज इन द यूटिलाइजेशन एट द बॉटलनेक लीड्स टू एन इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट, ROI एंड द कैश फ्लोज. और बॉटलनेक पे अगर आप जो है यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन योर नेट प्रॉफिट
return on investment and the cash flows. So here he is talking about how operational measures, which is inventory throughput or the operating expenses and the utilization, is directly impacting your financial measures की जिसकी वजह से आपकी profitability के अंदर जो है वो इजाफा होता है. तो these are the basic concepts which you needs to understand, and these are the terminologies which needs to be cleared before moving to the further next concepts. Moving on, he is talking about what are the key principles of the theory of constraint or the TOC. यानी कि आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हुए किन चीज़ों को बुनियाद बनाते हैं उसको हम लोग जो है बेसिकली प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं. Here he is talking about the focus should be on balancing flows, not on the balancing capacity. It means that कि जब bottlenecks होती हैं तो उसकी वजह से आपका capacity imbalance जो है वो आता है. bottlenecks की वजह से कुछ जगह पे resources जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ जगह पे कम यूज़ हो रहे होते हैं. The basic idea of the theory of constraint is this कि हम लोग flow, balancing flow means flow of the goods from starting point और the supplier to the customers. हमारा जो फोकस होएगा उसको बैलेंस करने पे होएगा, रादर देन कि हम लोग जो है कैपेसिटी की जो है जो इम्बैलेंस हो चुकी है उसको फोकस करें. मूविंग ऑन, ही इज टॉकिंग अबाउट मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ एवरी रिसोर्स मे नॉट मैक्सिमाइज द थ्रूपुट ऑफ द एंटायर सिस्टम. कि अगर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम इंडिविजुअली हर डिपार्टमेंट या हर रिसोर्स की एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करते हैं तो उससे पूरे बिज़नेस की जो एफिशिएंसी है वो बड़े ज़रूरी नहीं है. हमें पूरे बिज़नेस की आउटपुट या एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर देन द इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड द आउटपुट ऑफ ईच डिपार्टमेंट और द ईच रिसोर्स. The next point he is talking about is an hour lost at bottleneck or constrained resource in an hour lost for the whole system. इसका मतलब ये है कि bottleneck जहाँ पे रुकावट है, जो कि हम लोगों ने पीछे देखा कि what is bottleneck, वहाँ पे अगर हम लोग जो है 1 घंटा ज़ाया करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम या जो बिज़नेस है उसके एफिशिएंसी में 1 घंटा जो है वो ज़ाया होता है. और अगर हम लोग जो है नॉन बॉटलनेक रिसोर्स के ऊपर 1 घंटा सेव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो पूरा बिजनेस है उसका 1 घंटा जो है वो सेव हुआ है. इन सिंपल टर्म्स के हमें जो है बॉटलनेक जो रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज. एंड सिमिलरली द फोर्थ पॉइंट ही इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ inventory is needed only in front of bottlenecks and in front of assembly and shipping points. इसका मतलब ये है कि हमें इन्वेंट्रीज को बॉटलनेक रिसोर्सेज के सामने रखना चाहिए, असेंबली लाइंस जहाँ पे असेंबल होती हैं चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए इन्वेंट्रीज को, और जहाँ से चीज़ें शिप होएंगी वहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्रीज होनी चाहिए. इसके अलावा अगर किसी और जगह पे इन्वेंट्रीज हैं तो उससे आपकी जो बिज़नेस एफिशिएंसी है वो बेसिकली कम हो रही है. इन सिंपल टर्म्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल कह रहा है कि वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द इन्वेंट्रीज थ्रू आउट आवर ऑर्गेनाइजेशन. मूविंग ऑन, ही इज टॉकिंग अबाउट वर्क शुड बी रिलीज इनटू सिस्टम ओनली एज फ्रीक्वेंटली एज नीडेड बाय द बॉटलनेक्स. इसको जो है उसने एक इक्वेशन के ज़रिए भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. The bottleneck flows should be equal to the market demand. It means that कि bottlenecks के अंदर जो रुकावट है उस रुकावट को जब आप दूर करते हैं और आपकी जो फ्लो की मूवमेंट है वो एक्चुअली आपकी मार्केट डिमांड से मैच करनी चाहिए. अगर वो मार्केट डिमांड से कम है तो डेफिनेटली कंपनी मार्केट डिमांड को मीट नहीं कर पाएगी, और अगर वो मार्केट डिमांड से ज़्यादा है, वो फ्लो ऑफ गुड्स, तो उस केस में आपकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो बेसिकली बिल्डअप हो जाती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट ही इज़ टॉकिंग अबाउट इज एक्टिवेटिंग अ नॉन बॉटलनेक रिसोर्स इज़ नॉट द सेम एज यूटिलाइजिंग अ बॉटलनेक रिसोर्स. इसका मतलब ये है कि अगर हम जो नॉन बॉटलनेक रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करते हैं या उसके ऊपर फोकस करते हैं तो इससे हमारे जो ओवरऑल बिजनेस या सिस्टम है उसकी
जो थ्रूपुट है उसके ऊपर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हमें जो है बॉटलनेक रिसोर्सेज की जो एक्टिवेशन है या यूटिलाइजेशन है उसके ऊपर जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट पॉइंट ही इज टॉकिंग अबाउट इज every capital investment must be viewed from the perspective of the global impact on overall throughput, inventory and the operating expenses. It means that कि अगर कोई बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट कोई इन्वेस्टमेंट करती है विच इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उसकी जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ग्लोबल कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे थ्रूपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है या हमारी इन्वेंट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है या हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो है वो कितनी डिक्रीज आएगी। तो हेयर इज़ टॉकिंग अबाउट कि वंस यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस you should compare it from the global standards and the global competition that कि उसके पर्सपेक्टिव में आपके थ्रूपुट, इन्वेंट्री और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितना फ़र्क जो है वो आ रहा है। सो दीज आर द की प्रिंसिपल्स which are being used in the theory of constraint. Hopefully you will be clear about these principles. In the next lecture we will talk about the steps which are being used in the theory of constraint. That's all for today's lecture. If you have any comment or the question, you can make a comment in the Google Classroom, or maybe you can talk to your co-teacher for the better explanation. That's all for today's lecture. See you on the next time.